Hi guys, this is Amna and I got some more products. As you know, ke every week I do. I don't know. As soon as I go live, people start calling me. Please don't call me. I am live right now. I will call you back if you have any doubts. I'm sitting here in front of you. Anyways, so I told you that once a week I come and I share my skincare routine with you, with the products that I use and I like locally जो products होते हैं. So today I got some more products. Actually मुझे पूरे हफ्ते में मिलते रहते हैं. Good evening. So मुझे पूरे हफ्ते में मिलते रहते हैं products. But I just collect them and I decide कि एक ही दफ़ा मैं आऊँगी live and I will talk about all of them. अब आप लोगों को पता है कि इफ़ यू गाइज हैव बिन फॉलोइंग मी सो यू नो कि जो मेरे मेकअप के ट्यूटोरियल्स होते हैं आई डू ऑल ऑफ दोज फ्रॉम माई स्टूडियो. बट जो मेरे ये स्किन केयर के ट्यूटोरियल्स होते हैं दीज आर ऑल द वंस दैट आई डू फ्रॉम माई होम. और जो मेरी रिंग लाइट है घर पे वो टूट चुकी हुई है. सो आई सिट इन नेचुरल लाइट एंड आई एम सिटिंग राइट नाउ इन माई विंडो. सो आई हैव टू डू दैम बिफोर 5:36. आज मस्जिद अक्सा में हमला हुआ है. ओ माई गॉड. Yes, everybody should pray. I think that's terrible. I don't know what's happening. The other day I read कि Maldives में भी जो है bomb blast हुआ है. Already things are so bad. Already the time is so bad. Already the pandemic is so bad. I do not understand कि क्यों जो है ये ऐसे हो रहा है. But anyways, I would like to go and okay, so sorry. So already time इतना बुरा है और time इतना मुश्किल है. I don't understand why these things are happening. But उसके अंदर obviously अब lockdown आज से बहुत strict lockdown लग जाना है. और I think there was somebody on my live the other day saying कि नहीं लगेगा lockdown, but lockdown जो है वो लग रहा है. TV पे भी आ गया है. सिर्फ banks खुले रहेंगे because obviously ईद है आगे और एक पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है. सो बैंक्स वगैरह जो है वो पीपल आर ट्राइंग टू गेट देयर स्टफ डन एट बैंक्स. अच्छा जी. सो आई एम सिटिंग इन माई हाउस एंड ऑब्वियसली व्हेन आई एम सिटिंग इन माई हाउस द लाइट इज़ वेरी लिमिटेड बिकॉज the natural light, whatever it is, that is what I'm going to use today because my ring light has broken and I've been very lazy and shops have been closed, so I haven't gotten around to it. Acha ji, so I am going to talk about some of the stuff that I got recently and some of the stuff that I purchased. So हर चीज़ जो है that I review here is not something that I have gotten from different brands, but I love endorsing local brands, whether it's clothes or jewelry or skincare or beauty or whatever. And अभी जो मैं live series अपनी कर भी रही हूँ, I have been using people's outfits. अभी एक मैंने western look की थी परसों, which you guys really appreciated. तो उसके साथ I did a different kind of a makeup look. So whoever sends me their stuff and wants me to do tutorials, I always do them for them. But I also review products जो मुझे खुद online मिलते हैं, which I find that might be interesting, enough to use and might be of some value or something. तो मैं उस तरह की चीज़ें खुद भी जमा करती रहती हूँ. So there's some products that I buy also and I use, and if I feel कि वो बहुत अच्छे हैं तो I will give you a review for them. But अगर कोई मुझे भेजता है तो obviously I'll talk about them as well. Which also bracelet दिखा दें. Okay, so these are my bracelets. I just wear these all the time. So ये gold है and the rest of them are just this thing. अच्छा, so last time when I was doing my skincare routine, you guys were asking me about hand creams के hands के लिए कौन सी cream अच्छी रहती है. And I told you that अभी तक जो मुझे बॉडी शॉप की पता है या एक दो लॉसिटैन वगैरह के जो ब्रांड्स हैं उनकी हैंड क्रीम्स के बारे में मुझे पता है. एक्चुअली देयर टू बर्ड्स सिटिंग हियर लाइक प्लेइंग विद ईच अदर, तो मैं साथ साथ वो देख रही हूँ. सो आई डोंट नो कि लोकली कौन सी हैंड क्रीम और अवेलेबल है जो कि अच्छी है. सो weirdly enough, maybe somebody was watching this, so they have sent me their hand cream. So this is a company called Volair Cosmetics और उन्होंने मुझे जो है ये अपनी हैंड क्रीम भेजी है. सो आई हैवंट ट्राइड इट एज येट. एज यू नो आई मोस्टली, ये देखें बंद है आगे से, सो आई मोस्टली कम एंड ओपन थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड ट्राई दम विद यू, ताकि जो भी आपकी स्किन फ्रेश नहीं है, वेल मेरी भी स्किन फ्रेश रखना बड़ा मुश्किल है स्किन को. सो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग ऑल दीज स्किन केयर रूटीन्स एंड ऑल दीज प्रोडक्ट. सो इसको स्मेल करके देख लेते हैं एंड लेट्स सी कि ये कैसी है.
सो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग एनीथिंग लेट्स पुट द क्रीम ऑन. सो ये वाइट कलर की क्रीम है. सो सिंस यू गाइज हैड आस्क्ड मी, ओके स्मेल्स नाइस. कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल लगाती हूँ. कोकोनट ऑयल, ओ एक्चुअली वेरी नाइस. आई क्वाइट लाइक. ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई वाटर बेस्ड क्रीम मैंने लगाई है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ रियली थिक क्रीम बिकॉज इट्स लाइक वो थिक वाइट जो सनस्क्रीन्स नहीं होती उस तरह की है. बट एक्चुअली इट्स नॉट एट ऑल ऑयली. एंड येस, आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मेकअप टिप्स. एंड it's actually quite nice. It's very nice. So ये basically पोलैंड की क्रीम है actually and not bad at all. लाइट चिप नहीं है, बिल्कुल भी चिप नहीं है मेरे हाथों पे. मैं सोच रही थी कि मैंने हाथों वाली क्रीम लगा ली तो चिप हो जाएगा, बट इट्स नॉट चिप. सो क्वाइट अ नाइस हैंड क्रीम एंड आई थिंक नॉट इवन एक्सपेंसिव. अच्छा, येस्टरडे आई हैड गॉन एंड मैंने अपने नेल्स जो है वो येलो करा लिए थे बिकॉज आई एम वेयरिंग समथिंग येलोइश ऑन ईद. सो आई थॉट कि वाई नॉट, इवन दो मैं उस पर पीच भी करवा सकती थी, रेड भी करवा सकती थी, बट आई डिसाइडेड कि वाई नॉट. येलो इज़ अ हैप्पी कलर. आई वॉज फीलिंग हैप्पी आफ्टर वेयरिंग इट. सो बहुत लोगों ने कमेंट किया और बहुत लोगों ने कहा कि आम लग रहे हैं, मैंगो लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन, बट आई एम रियली इन्जॉइंग दिस. मैंने पाँव पे भी येलो कराया हुआ है, हाथ पे भी. आई लाइक ट्राइंग डिफरेंट colors on my nails, so I quite like it. अगर किसी को नहीं अच्छी लग रही, doesn't matter. ईद का प्लान ये है कि जी बस जस्ट इमीडिएट फैमिली एंड दैट्स अबाउट इट. और ईद पे क्या करना है. अच्छा जी, सो आज जो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसमें से हैंड क्रीम मैंने आपको बता दी. सो इट्स अ नाइस हैंड क्रीम. इट्स फीलिंग फ्रेश. लग रहा है कि वाटर बेस्ड है. मुझे लग रहा था कि बहुत थिक होगी, बट एक्चुअली थिक नहीं है. अच्छा, सो आई एम गोइंग टू डू मास्क टुडे. आई ऑल्सो वॉन्ट टू पुट सम ऑयल इन माई हेयर बिकॉज ये मैंने कर्ल किए थे फॉर द ट्यूटोरियल और अब इनका बिल्कुल बुरा हशर हो गया है. थैंक यू सो मच अफशी. सो अब इनका बुरा हशर हो गया है. सो आई वॉन्ट टू ऑयल माई हेयर एज़ वेल. यू नो कि मेरे पास बहुत सारे ऑयल्स हैं. सो आई ऑयल माई हेयर एंड देन आई वॉन्ट टू पुट सम मास्क ऑन एंड डू अ फ्यू लिटिल अदर थिंग्स एज़ वेल. तो वो साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँगी. आई हैव गॉट माई होल किट रेडी हेयर. तो आज स्किन केयर के ऊपर बात करेंगे. वैसे वंस अ वीक यू शुड ऑलवेज टेक आउट टाइम एंड do something about your skincare routine, whether it's a mask or serums or something like that. आपको ज़रूर लगाने चाहिए and you should look after your skin and that is the way to hydrate your skin and that is the way to make your skin look good and fresh. अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे. तो एक ये कंपनी है ऑर्गेनिक ब्लूम. इट्स अ लोकल कंपनी. आई थिंक इट्स कराची बेस्ड. इन्होंने मुझे अपने प्रोडक्ट्स भेजे हैं एंड दे हैव सेंट मी फेस मास्क और फेस वॉश एंड स्टफ़ लाइक दैट. तो आज हम वो यूज़ करेंगे. एंड देन ऑयल जो मैंने लगाना है वो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये चिल्ड्रन प्योर का कॉकटेल ऑयल भी है एंड आई हैव चिल्ड्रन प्योर का रीठा ऑयल ऑल्सो. एंड H&M एक कंपनी है, उसका मेरे पास ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है. सो अब ये हेयर ऑयल जो है मैं सोच रही थी कि कौन सा लगाऊँ. दिस वन आई टोल्ड यू इज़ माई फेवरेट हेयर ऑयल. आई हैव नेवर had or seen hair oil which smells so good. Oof, this smells like a spa in Maldives. Literally मुझे लगता है बाहर पानी है और बस मैं स्पा में लेटी हुई हूँ. I really want to put this, लेकिन मैंने 2 दिन पहले भी यही लगाया था. So I try and mix. ही ख़त्म हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है. So I was thinking कि मैं आज H&M का ये लगा लूँ. इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा लिखे हैं. बट H&M जो ये कंपनी है, मैंने ये रियलाइज़ किया कि इन्होंने मुझे अपना जो मास्क भी भेजा था, क्रीम भी भेजी थी, उस पर बहुत सारे फ़ायदे लिखे हुए. तो इस पर भी हेयर फॉल प्रोटेक्शन, रीग्रोथ और सारा कुछ लिखा हुआ है. सो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे लिखे हुए हैं. बट ये है कि इट स्मेल्स डिस्गस्टिंग. it's horrible. It really smells disgusting. So again इसमें भी मनी बैक गारंटी है. So I mean I really applaud those brands जिनमें मनी बैक गारंटी होती है. सो इट रियली स्मेल्स डिस्गस्टिंग. बट मुझे कभी कभी लगता है कि जो ऑयल डिस्गस्टिंग स्मेल कर रहा होता है ना, मे बी दैट्स हाउ इट वर्क्स. क्योंकि इसमें मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, धनिया ऑयल, काहू ऑयल, चमेली ऑयल, कैस्टर ऑयल, टी ट्री ऑयल, जोजोबा ऑयल, सेसमी ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, लैवेंडर ऑयल, रोजमेरी ऑयल, कद्दू ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, विटामिन A, B, C, D, E, प्रोटीन, बायोटिन, जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सब कुछ है. And that is not all of the stuff, by the way. इसमें बरगे, हिना, शिकाकाई, रीठा, आंवला,
पता नहीं क्या क्या, गुलाब, एलोवेरा, तेज पत्ता और बहुत लेमन, अनियन, धनिया सीड, बहुत कुछ है इस तेल के अंदर. सो आइदर आई कैन पुट दिस, या फिर ये ही चिल्टन प्योर वालों का एक और ऑयल है विच इज़ द रीठा ऑयल. सो रीठा ऑयल जो है ये आयरन है बहुत ज़्यादा इसमें, एंड पैक विद एंटीऑक्सीडेंट्स है, स्कैल्प को इन्फेक्शन से बचाता है. सो यू नो इसमें हेयर ग्रोथ, हेल्दी स्कैल्प, स्प्लिट एंड्स, हेयर थिकनिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, एंटी हेयर फॉल. सो ये भी कह रहा है कि ये बड़ा कुछ करता है. आई मीन दिस स्मेल्स better than this one, better than the organic hair oil, but definitely not as good as this है. ये एक ही कंपनी के दोनों ऑयल्स हैं. so this is the hair cocktail. I mean I don't know if this works because ये इतनी अच्छी स्मेल है कि I don't know कि जो इतना अच्छा ऑयल स्मेल करता है वो काम भी करता है कि नहीं. So I can use this Rita oil, but I really want to use the really bad smelling oil because I want to see के I don't know satisfaction मुझे होगी उससे. So I'm going to use this oil today. एक तो इसके फ़ायदे बहुत लिखे हुए हैं, and secondly, okay, so I'm not going to meet anybody until I take a shower after putting this. Which spa is my favorite in the States? Well, I love spas, but Maldives के spas are my favorite. अच्छा जी, ये ऑर्गेनिक ब्लूम ने मुझे भेजा है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. सो दिस इज़ द सैफ्रॉन फेस टोनर. सो आई हैव अ लॉट ऑफ फेस टोनर्स एंड यूजुअली वो मैं लगाती हूँ हमेशा अपना फेस वॉश करने के बाद, बट ये आज मैं पहले लगाऊंगी बिकॉज आई एम गोइंग टू देन आफ्टर दिस पुट ऑन अ पील ऑफ मास्क. So I'm going to just spray my face with this, and this is the face toner used to treat acne, best for anti-aging, brightens skin and improves complexion. So I mean, who am I to complain, right? So मैंने इसको लेना है and I'm going to spray it on my face quite generously. So ये मैंने स्प्रे कर लिया है अपने फेस पे. So rather than washing my face, I have just sprayed this toner on my face. It feels good. It's suitable for all skin types. एंड अगर ये एक्नी को भी ट्रीट कर देता है और एंटी एजिंग भी कर देता है तो इससे बेहतर और क्या चीज़ है. सो ये मैंने पूरे फेस पे अपने काफ़ी ज़्यादा लगा लिया है. सो मैं ब्रश लेकिन आई विल जस्ट, ताकि ये ऑब्वियसली ठीक है जी. सो अब मेरा फेस जो है वो ऑब्वियसली मैंने वेट करना था, इसीलिए मैंने ये स्प्रे लगाया है. बिकॉज वेन एवर यू पुट अ मास्क, तो आप बिल्कुल ड्राई फेस पे मास्क नहीं लगाते हो, आप थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर मास्क लगा के तो देन यू पुट ऑन द अदर मास्क. सो अब इसी ब्रांड ने मुझे एक चीज़ भेजी है विच इज़ द गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क विद स्पेशल ग्लिटर पार्टिकल्स दैट गिव यू इंस्टेंट ग्लो. सो ये आप मास्क देख रहे हो. सो दिस इज़ देयर मास्क एंड ये बिल्कुल पैक्ड है. सो व्हाट आई डू लाइक अबाउट देयर प्रोडक्ट्स इज़ के दे आर प्रॉपरली पैक्ड एंड आई एम ओपनिंग इट. जो हैंड क्रीम भी मुझे आई थी वोलेयर से सॉरी, वो भी मैंने खुद खोली थी. एंड ये वाला मास्क भी जो है ये मैं खुद खोल लेती हूँ. ओके, सो दिस इज़ द मास्क एंड इट इज़ अ पील ऑफ मास्क. सो पील ऑफ मास्क वो होता है जो कि आप स्किन पे लगा तो लेते हो एंड देन यू जस्ट पील द होल थिंग ऑफ, यू डोंट वॉश इट ऑफ विद वाटर. देख रहे हैं आपके ये सारा मेरे हाथ पे लग गया. ओके, सो दिस इज़ द मास्क. सो इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड कोल्ड. आई एम रियली लाइकिंग इट. So I am going to put this mask on my face. तो ये कुछ इस पर भी लगा हुआ है. So I am just going to take a tissue. And now what I'm going to do is I'm going to take this brush and I'm going to start from here. And I'm going to start applying this mask on. So actually it is doing what it says, that it is a really shiny gold mask. It smells really good. थिक है थोड़ा, बट जो ये पील ऑफ मास्क होते हैं दे हैव टू बी थिक बिकॉज उनकी थिक लेयर
अगर लगेगी आपकी स्किन पे, एक सेकेंड, सो अगर उनकी थिक लेयर आपकी स्किन पे लगेगी तो ऑब्वियसली उनको पील ऑफ करना इजी होगा. अगर बहुत थिन लेयर होगी तो वो पील ऑफ नहीं होंगे. सेकेंडली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मेरे हाथ पे एक्चुअली लग गया है बिकॉज आई वॉज ओपनिंग इट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू वॉश माई हैंड्स. तो आप एक साइड पे देख रहे हो कि अभी मैंने लगा लिया थोड़ा सा, बट ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट इनफ. एंड व्हाट आई डू ऑल्सो वांट टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू वेयर माई हेयर बैंड एंड लुक अ लिटिल फनी, बट क्योंकि मास्क है, पील ऑफ है, आई वांट कि मेरे पूरे बाल जो हैं वो पीछे हो जाएं. सो इफ़ द बैंड लुक्स फनी देन इट लुक्स फनी, कुछ नहीं हो सकता. ओके, सो नाउ आई एम गोना टेक द मास्क. द ब्रांड सारा इज वेयर इज द ढक्कन. ओह, सो दिस इज द ऑर्गेनिक ब्लूम क्लोज टू नेचर. सो ऑर्गेनिक इनके सारे के सारी चीज़ें हैं. सो द प्रोडक्ट नेम इज़ द गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क. सो बिफोर पुटिंग द मास्क ऑन आई यूज़ देयर टोनर. इनका सैफ्रॉन टोनर था, इसके अंदर सैफ्रॉन के पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे हैं. सो मैंने टोनर से लेके तो थोड़ा सा अपनी स्किन के ऊपर स्प्रे कर दिया था. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस मास्क. आई मीन लुक एट दैट गोल्ड, हाईलाइटर वाला गोल्ड है. एंड आई एम गोइंग टू put a nice thick layer of this mask on my face. बहुत आंखों से नज़दीक नहीं जाऊंगी और बहुत ज़्यादा बालों से भी नज़दीक नहीं जाऊंगी बिकॉज़ ये जो पील ऑफ मास्क होता है फिर इसमें अगर बाल फंस जाएं तो फिर वो टूट जाते हैं. तो ये मेरी एक साइड हो गई है. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे टू ट्राई एंड टेक ऑफ. ऑन स्क्रीन द प्रोडक्ट नेम इज़ गोल्डन ग्लो मास्क. एंड अभी तक तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. इट फील्स रियली गुड ऑन माई स्किन. It feels nice and thick, but not like my skin can't breathe. And can you see the gold is pretty, like it's gold. So I'm using this. So I like using masks at least once a week. I keep trying different masks. कुछ जो है वो मेरे regulars बन जाते हैं. Last week हमने mud mask use किया था, if you guys remember. So but I'll always try. ये इस तरह का एक gold का mask मैंने पहले भी use किया हुआ है, but वो एक Chinese brand था I think. ये एक local brand है. So obviously this is better. It's fresh. It will be cheaper. I will tag the pages. I will put this IGTV live on my feed so you guys can go and check out the pages. So ये मैं लगा रही हूँ. दोबारा बता दे, मैं अभी दोबारा आपको बता देती हूँ. नहीं समझ आई क्या? नहीं समझ में आई. I will tag all the products. I will tag their pages. So you guys can go and find out more information about these from their pages. Obviously मुझे जितनी information है मैं आपको वो ही दे सकती हूँ. So you have to very carefully put this mask on. But इस मास्क को लगाने में कंजूसी नहीं कर सकते कि बहुत कम लगाएं बिकॉज इट्स हैज़ टू बी अ नाइस थिक लेयर, अदरवाइज वो लगेगा ही नहीं. तो ये मैं ऑल द वे अपनी चिन के
नीचे तक ले जा रही है. There you go. अच्छा, मैंने आईज के बहुत नज़दीक नहीं किया और मैंने आईज के ऊपर भी नहीं किया. अभी भी ये मुझे लग रहा है कि आईज के नज़दीक है. तो ये जो पील ऑफ मास्क होती है ये इस पर लैशेस फंसना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने पील ऑफ होने के लिए ड्राई होना है और ड्राई होने के लिए उसने थिक हो जाना है. सो दिस वाज द मास्क जो मैंने लगा लिया है. आई हैव टू से दैट मेरी लैशेस चिपक रही है मास्क के साथ, बट दैट इज़ माई फॉल्ट क्योंकि मैंने ज़्यादा नज़दीक लगा लिया है. बट इट सेज दैट इट्स गोल्डन, इट सेज इट हैज़ So it says that special glitter particles that give you instant glow. So definitely glowing. If you like highlighters, you can go with this look. Somebody want to highlight? So definitely a highlighting mask. And definitely gold भी आ रहा है, glow भी आ रहा है. So ये तो आप उतारेंगे तो पता चलेगा कि इसकी glow कैसे आई है. So this is the mask that I have used. So it is the Golden Glow Peel Off Mask. And this company is Organic Bloom. और मैं इनको टैग भी कर दूंगी. तो सबसे पहले मैंने इनका लगाया था सैफ्रॉन फेस टोनर जस्ट टू वेट माय फेस अ लिटिल बिट. और अभी मैं ये नेक तक नहीं लेके गई, जस्ट लाइक यू नो यहाँ तक बस लेकर आई हूँ. ब्रश को हम कर लेंगे वॉश. एंड अभी मैंने ये लगाया है. सो नाउ इट डज़ नॉट से कि कितनी देर तक लगाना है, बट जनरली द रूल फॉर पील ऑफ मास्क इज़ कि जब तक अब ये पील ऑफ नहीं होना शुरू होता तो आई हैव टू कीप दिस मास्क ऑन. आई गेस रोज़ा भी है. आई डोंट वांट टू एंड अप ईटिंग एनी ऑफ द मास्क. सो सिंस आई एम लाइव, ओके आई बेटर स्टॉप टचिंग इट. सो सिंस आई एम लाइव, मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट मंथ मैंने आई हैव टोल्ड यू गाइज द नेम. सबा द नेम इज़ ऑर्गेनिक ब्लूम. सो मैं आपको ये भी बता दूं जब तक ये मास्क ड्राई हो रहा है कि लास्ट मंथ मैंने अपनी हेयर की PRP ट्रीटमेंट करवानी शुरू की थी. एंड ओह सॉरी, चीज़ों को धक्के क्यों मार रही हूँ. मैंने अपने नोज़ के नीचे नहीं लगाया. अच्छा, सो लास्ट मंथ जो है वो मैंने अपनी PRP करवाई थी हेयर की. और आई स्टार्टेड डूइंग द हेयर की PRP के सेशंस. तो आप लोगों ने बहुत मुझसे सवाल पूछे हैं कि वो PRP कैसी थी, क्या था, उसकी क्या कॉस्ट है. सो जनरली जो है 22,000 पर सेशन जो है वो हेयर की PRP की कॉस्ट होती है. बट इफ़ यू टेक माई रेफरेंस एंड इफ़ यू टेक माई नेम तो 15,000 पर सेशन आपको जो है वो हेयर की PRP मिलेगी. सेकेंडली, हर जो PRP का सेशन होता है उसमें one session is not enough, so you have to do 3 sessions. Oh, my nail polish, my hairband and my face are all matching right now. But anyways, for people who are joining in right now, don't get scared. So जो hair की PRP है उसके आपको 3 sessions करने होते हैं. When I did my face की PRP तब भी मैंने 3 सेशंस किए थे. और मैंने आपको बताया था कि जो फेस की PRP होती है उसमें भी वो ब्लड लेते हैं यहाँ से, एंड देन ऑब्वियसली वो सारा जो है सिरम बना के तो आप ही के जो सारे विटामिन्स वगैरह और आप ही का जो सारा कुछ है वो ही लेके तो आपकी स्किन में वापस डर्मर पेन के साथ उसको इंजेक्ट करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो यूथफुल हो जाती है. एक्चुअली मैंने ज़्यादा डार्क सर्कल्स की वजह से करवाया था मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स का इशू था. आई फील कि उससे स्किन थोड़ी सी इम्प्रूव हुई थी, डेफिनेटली ऑब्वियसली हुई थी. बट क्योंकि मुझसे ये बोटॉक्स शोटॉक्स और ये फिलर्स फुलर्स नहीं होते, अभी तक तो मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंची वेयर आई यूज़ दीज. बट आई डोंट नो, मे बी आई विल सी लेटर. सो वो मैंने जो है उसकी वजह से आई थॉट दैट आई वुड गो फॉर PRP. सो मैंने PRP करवाई थी, मुझे अच्छा लगा था. उसकी जो रिकवरी थी इट वॉजंट दैट पेनफुल, रियली अनकम्फर्टेबल था थोड़ा सा. बट यू नो 1 हफ़्ता लगता है फेस की PRP करवाने के बाद. ऑब्वियसली यू नो रेडनेस, अब आप देखो कि मेरी लाइंस काफ़ी ज़्यादा अभी भी हैं, देर ऑलवेज गोना स्टे, बट काफ़ी लाइट हो गई हैं. दे वर वेरी वेरी इंटेंसली डार्क. सो इसमें मुझे वाकई काफ़ी फ़ायदा हुआ है. उसके बाद फिर मैंने जब एक दफ़ा हेयर की PRP के 3 सेशंस करवा ली और सारा कुछ फॉर द नेक्स्ट 6 months to a year आई वॉज गुड. अब मैंने सोचा कि मैं हेयर की PRP करवा के देखती हूँ. सो ट्राई समथिंग डिफरेंट एंड न्यू फॉर यू गाइज.
अच्छा, ये साथ साथ मैं आप लोगों से बातें भी इसलिए कर रही हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। ये ड्राई होगा तो हम इसको पील ऑफ करेंगे तो हम कुछ और कर सकेंगे। तो जो हेयर की पीआरपी है वो मैंने लास्ट मंथ स्टार्ट की थी और वो मैंने एक सेशन अभी तक करवाया है। अगेन हेयर की पीआरपी के सेशन के भी 3 आपको करवाने पड़ते हैं। पीआरपी ओनली वर्क्स अगर आप 3 सेशंस एटलीस्ट करवाओ इकट्ठे। हेयर की भी जो है वो आपको 3 सेशंस इकट्ठे करवाने पड़ते हैं। मैंने अभी पहला करवाया था एंड आई गॉट द फर्स्ट वन डन ऑन द 7th ऑफ अप्रैल। तो अभी जो है मेरा आज एक्चुअली दूसरा सेशन होना था। आई स्पोक टू डॉक्टर कामरान एंड माई सेकेंड सेशन वॉज सपोज टू टेक प्लेस टुडे, बट द ओनली थिंग इज़ कि आई वॉज अ लिटिल कंसर्नड एक्चुअली, नॉट स्केयर्ड बट कंसर्नड। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो हेयर का पीआरपी है उसमें मुझे पेन, इट वॉज मोर पेनफुल, बट द थिंग इज़ कि एक सेकेंड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। जो हेयर का पीआरपी था दैट वाज मोर पेनफुल देन द फेस का पीआरपी। नॉट द प्रोसीजर में सिर्फ ये था कि मुझे उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया की यहाँ पे टीका लगाया था और उसके बाद मेरा हेयर का पीआरपी किया था। हेयर का पीआरपी उस वक़्त तो बिल्कुल ऑब्वियसली पेनफुल नहीं था, बट द नाइट दैट आई गॉट इट डन, उस दिन रात को जब लोकल एनेस्थीसिया वेयर ऑफ हो रहा था तो तब बहुत 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 ज़्यादा सिवियर मुझे पेन थी, बट एक रात के लिए। वो जो है देख लें आप कि आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। आई वॉज अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ गेटिंग द सेकेंड सेशन डन, लेकिन मैंने सेकेंड सेशन करवाना था। यू शुड एक्चुअली गेट इट डन 1-2 दिन आगे पीछे फ्रॉम द सेम डेट जब आपने करवाया था। मैं एक्चुअली आज करवाने मैंने जाना था, बट द थिंग इज़ कि उसके अंदर ब्लड लेते हैं। आई नो कि ब्लड आप दे सकते हो रोज़े में, मतलब अगर आपको इमरजेंसी या किसी वजह से देना पड़ता है तो आई नो पीपल जो कि खून दे देते हैं वाइल दे आर फास्टिंग और रोज़ा नहीं टूटता है। बट दूसरी चीज़ ये है कि टीका, मतलब वो तो आपका ब्लड एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें लोकल एनेस्थीसिया का टीका लगना होता है। आई एम नॉट श्योर कि अगर इसमें जो है वो रोज़ा रख के ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है, कि रोज़ा टूट तो नहीं जाता अगर आप टीका लगवाओ तो, या एनेस्थीसिया है सो इट्स गोइंग इनसाइड यू। आई डोंट नो कि आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो, यू कैन टेल मी। वो मैंने डॉक्टर कामरान से बात की थी कि दैट वाज माय कंसर्न कि अगर जो है वो आप लोकल एनेस्थीसिया का मुझे टीका लगाते हैं तो क्या मेरा रोज़ा उससे टूट जाएगा या अफेक्ट हो जाएगा। तो ही ऑल्सो सेड कि ही इज़ नॉट श्योर अबाउट दैट, सो इट्स अ वेरी पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद इट तो ही सेड कि तुम फिर अभी ना करवाओ और तुम जो है, मैंने उनसे कहा कि मैं ईद के बाद फिर करवा लूँ, अगर मैं अब कितने दिन रह गए, 1 हफ़्ता ही रह गया है, तो अब मैंने ईद के बाद उनको कहा है कि मेरा कर दे। वैसे ये कल से तो लॉकडाउन है, तो मैंने सोचा था कि मैं आज जाके करा लूँ, बट मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगर आप लोकल एनेस्थीसिया का टीका लगवा सकते हो वाइल यू आर फास्टिंग। इसलिए फिर मैंने नहीं करवाया। आई विल गेट दैट डन आफ्टर बड़ी ईद, छोटी ईद, सॉरी, आफ्टर छोटी ईद, और फिर मैं आपको बताऊंगी। रोज़ा नहीं टूटेगा सारा। आई नो कि खून देने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया तो फिर मेरे अंदर जाएगा, राइट। उसकी मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो आई थॉट कि कन्फ्यूजन से बेहतर है कि 1 हफ़्ता मैं वेट कर लूँ। अभी मैंने सिर्फ एक पीआरपी का सेशन करवाया हुआ है, उसमें मुझे ये डिफरेंस लगता है कि मेरे बाल थोड़े से कितने कम हो गए हैं। अभी तक उसके अलावा मुझे कोई इतना डिफरेंस नहीं पता लगा कि शाइन ज़्यादा हुई है या थिकनेस हुई है एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक इट्स टू सून, तो आई डोंट थिंक कि उसमें आई कैन से एनीथिंग। बट आप ये देखो कि अब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया है, इसका हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरा ड्राई नहीं होता। तो अगर मैं बिल्कुल पीछे होके लेट जाऊँ तो पंखा है ऊपर, तो पंखे में काफ़ी मज़े की हवा आ रही है, तो ये सूख जाएगा। लेकिन एनीवेज इट डजंट मैटर अगर मेरी पीआरपी 1 हफ़्ता आगे पीछे भी हो जाएगी। जब मैं अपना सेकंड सेशन करवाऊंगी, ऑब्वियसली यू गाइज विल गो विद मी एंड वी विल टॉक अबाउट इट एंड वी विल सी इट एंड देन आई विल टेल यू कि पीआरपी में कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। बट ऑब्वियसली जब सारे मेरे सेशन हो जाएंगे फिर मैं एक बनाऊंगी जिसमें शुरू से लेके एंड तक मैं आपको सारा दिखाऊंगी कि क्या उसका प्रोसीजर था और उसमें फ़र्क पड़ा है कि नहीं फ़र्क पड़ा है। स्किन के पीआरपी के अंदर तो मुझे डेफिनेटली लगा था कि फ़र्क पड़ा है, बट हेयर का पीआरपी व्हेन इट गेट्स डन तो फिर। अच्छा, समरा फेस की कोई क्रीम बताएं। मैं आज बिल्कुल आपको क्रीम्स भी बताने लगी हूँ बिकॉज आज स्किन केयर का ही दिन है। ब्लड देना और लेना, IV
जिनसे नहीं टूटेगा रिलेटेड टू मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ फाइन. आई नो, बट यू सी आई अंडरस्टैंड इफ़ इट्स एन इमरजेंसी, लेकिन अगर आप ड्रिप लगाते हो उससे तो डेफिनेटली रोज़ा टूट जाता है, राइट. लेकिन अगर कोई मजबूरी की चीज़ है जिसमें आपका लेना है ब्लड एंड ऑल दैट, तो आई अंडरस्टैंड कि आपका रोज़ा नहीं टूटता. कोविड टेस्ट करना है या इस तरह की कोई इमरजेंसी वाली चीज़ करनी है. बट अगर तो मैंने PRP ही करवानी है, जो कि मैं डिले कर सकती हूँ, और कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है, तो फिर माई गिल्टी कॉन्शियंस इज़ जस्ट नॉट गोइंग टू लेट मी गेट इट डन. सो कोई बात नहीं आसिया, देर आए दुरुस्त है, आपने ज्वाइन कर लिया, डजंट मैटर. एनी होम रेमेडी फॉर स्मूथ स्किन, बहुत सारी होम रेमेडीज़ है. बाय द वे मैं अपने काफ़ी सारे देख के ना मास्क बनाती रहती हूँ और लगाती रहती हूँ अपने फेस पे. सो इफ़ यू गाइज वांट आई कैन डू अ फ्यू ऑफ दोज लोकल मास्क. स्ट्रॉबेरी से बहुत अच्छा मास्क बनता है, बनाना से बहुत अच्छा मास्क बनता है. तो इफ़ यू गाइज वांट तो मैं कुछ एक दो लोकल खुद भी बना के मास्क आपको लगा के दिखा सकती हूँ. हेयर मास्क ऑल्सो एंड फेस मास्क ऑल्सो. अच्छा, सो ये आसिया आपको मैं बता देती हूँ, ये है जी ऑर्गेनिक ब्लूम का गोल्डन ग्लो मास्क जो मैंने लगाया है अपने फेस पे. इट्स अ पील ऑफ मास्क, और मैं भी देर से आई हूँ, कोई बात नहीं. गुल मासूमा ओके, गुल मासूमा, सॉरी. सो ये मैंने गोल्डन ग्लो मास्क लगाया है ऑर्गेनिक ब्लूम का. अच्छा, इनके मैं आपको प्रोडक्ट्स बता देती हूँ इन्होंने मुझे क्या क्या भेजे हैं. एक इन्होंने मुझे ये सैफ्रॉन का फेस टोनर भेजा था, विच आई पुट ऑन बिफोर पुटिंग द मास्क ऑन. फिर इन्होंने मुझे ये ग्लो मास्क भेजा था जो पील ऑफ मास्क है, जो मैंने अभी लगाया हुआ है. आई एम वेटिंग फॉर इट टू, अभी इतना ड्राई नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली ऑलमोस्ट होने वाला है. सो ये ड्राई होगा, हम इसको उतारेंगे. तो ये इन्होंने मास्क भेजा है. देन दे हैव सेंट मी दिस फेस वॉश, जो कि आई डोंट नो, हाँ ये है शाइन कंट्रोल फेस वॉश है, और अगेन इट इज़ ऑर्गेनिक, और इसमें सारे ये जड़ी बूटियाँ वगैरह सारी है. तो ये स्टिकर वो लीक कर रहा था, तो उतारते उतारते ये ऑब्वियसली इसका उतर गया है. बट इट्स अ शाइन कंट्रोल, तो एक दफ़ा हम ये कर लेंगे तो इससे हम फेस वॉश करेंगे. उसके अलावा देन दे हैव सेंट अ सनस्क्रीन लोशन SPF. अभी SPF क्या है ये इस पर नहीं मैंशनड है कि SPF 30 है, SPF 50 है, बट आई ट्राई एंड सी कि हाँ इस पर नहीं मैंशनड है कि ये SPF क्या है. इट जस्ट सेज दैट इट हैज़ नेचुरल SPF बिकॉज ऑफ कैरेट सीड ऑयल. सो ये सनस्क्रीन लोशन है, हमें सबको लगाना चाहिए. मैं नहीं लगाती हूँ. सो इफ़ दिस टर्न्स आउट टू बी गुड एंड ऑर्गेनिक, आई विल वेरी हैप्पीली पुट दिस ऑन एवरी डे बिकॉज सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, सो आई विल टेल यू होम रेमेडीज़. ओके ठीक है, डोंट वरी. नेक्स्ट जो मैं आऊँगी ना अपना घर का स्किन केयर का करने, उसमें आई विल टेल यू. सो ये इनकी सनस्क्रीन है. सो वी विल पुट दिस ऑन, एंड देन दे हैव सेंट मी दिस ऑरेंज ग्लो सीरम, एंड ये ऑरेंज ग्लो सीरम smells really good. So ये लगाएंगे, and then they have sent me this which is a beetroot watery lip and cheek tint. So जब आपने मेकअप ना करना हो but you want a little bit of rosy pinky cheeks, तो beetroot obviously I love eating beetroot as well, so now I will be putting it on my face also. So हमारी vegetables और fruits के actually बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं. So obviously true to their name, organic, everything they have is organic. So this is what I will be using फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स. उसके बाद मैंने ऑयलिंग करनी थी, और मैंने आपको बताया था कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैंने कौन सा ऑयल लगाना है. बट आई थिंक हमने डिसाइड किया था कि द मोस्ट हॉरेबल स्मेलिंग ऑयल इज़ द ऑयल दैट आई एम गोइंग टू पुट ऑन माई फेस. उसके बाद वॉलेर एक कंपनी है जिन्होंने मुझे अपनी हैंड क्रीम भेजी है, एंड दे हैव ऑल्सो सेंट मी देयर, इंग्लिश का लिखी हुई है भाई, हाँ. सो दे हैव सेंट मी देयर गोट्स मिल्क एक्सप्रेस फर्मिंग क्रीम, फेस क्रीम, लिफ्टिंग क्रीम. सो ये इन्होंने मुझे क्रीम भेजी है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस क्रीम ऑन एज वेल. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. अपेरेंटली इट्स फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन. इसको भी खोल लेते हैं, ये भी नहीं है. सो मैंने उल्टा ही खोल लिया है, ऊपर से जगह नीचे से निकाल ली है. सो दिस इज़ द क्रीम. इट्स अ लिफ्टिंग फेस क्रीम, गोट्स मिल्क प्रोटीन्स, हनी एंड बीज वैक्स एक्सप्रेस फर्मिंग. सो दिस इज़ द क्रीम दैट दे हैव सेंट मी. सो हम ये यूज़ करेंगे. सो इट स्मेल्स लाइक हनी और बीज वैक्स है ना. सो दिस बेसिकली स्मेल्स लाइक वो जो हम विप्ड क्रीम नहीं करते टू पुट ऑन आवर केक्स, जो रीनाज का वो कैरमल क्रंच केक नहीं होता वनीला वाला, इट स्मेल्स लाइक दैट. सो आई वांट टू ईट इट. अच्छा एनीवे, सो इसको हम बाद में ट्रीट करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़. उससे पहले आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज़ दीज 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड शिफा, जो मैंने दुबई से लिए थे.
ये बहुत छोटी बॉटल्स हैं बट बहुत महंगी बॉटल्स थी. आई थिंक ये 400 या 500 दिरहम की एक बॉटल थी. सो दिस इज़ दिस ब्रांड विच इज़ मेड इन USA, बट द थिंग इज़ कि ये आई थिंक दुबई का लोकल ब्रांड है, आई डोंट नो, बट अरब ब्रांड है आई थिंक. और ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था सेफोरा पे और स्किन केयर के अंदर स्पेशली. सो दिस इज़ बेसिकली सीरम फॉर ब्राइटनिंग और इसके अंदर विटामिन ए है. एंड दिस इज़ आई रेमेडी, रिजुविनेटिंग आई रेमेडी. तो ये मैंने दोनों चीज़ें यूज़ करनी शुरू की हैं एंड इनको भी मैं लगाऊंगी. एंड ये जो है मुझे उन्होंने बताया था कि आप देख रहे हो मैंने कितना यूज़ किया हुआ है. सो ये जो है यहाँ पे जो पिगमेंटेशन हो जाती है, ये यहाँ पे जो पिगमेंटेशन होती है, ये उसके लिए अपेरेंटली बहुत अच्छा है. एंड आई बिन यूजिंग इट एंड बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करती हूँ, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं कि इसकी वजह से बेहतर हुआ है, बट बेहतर हो गया है. और ये जो है ये फॉर अंडर आई, तो वो मैं अपना वो लूँगी द स्टोन दैट आई गॉट लास्ट टाइम गाउशा, और इसको लगा के हम थोड़ी सी आई रेमेडी भी कर लेंगे इफ़ यू हैव टाइम. सो आई एम गोइंग टू यूज़ द 2 products जो मुझे आए हैं, put some hair oil and then use these and put the serum on. So I wanted to also talk about this Charlotte Tilbury की magic cream which is fantastic, but I think मैं इसकी बात नहीं करूँगी आज because मैं ये जो goat's milk cream है इसकी बात कर रही हूँ. और एक black tea age डिले आई कॉन्सेंट्रेट भी है मेरे पास, इसकी भी बात मैं आज नहीं करूँगी. वॉलियर वालों ने ही मुझे एक और चीज़ भेजी है जिसकी मैं आज बात करूँगी, विच इज़ दिस. सो इट इज़ बेसिकली एन ऑक्सीजनेट मास्क विद हाइलोरॉनिक एसिड, ग्रीन एल्गी एंड विटामिन ई. इसको आप लगा लेते हो, बट ये हम एंड में लगाएंगे और इसको लगाने के बाद स्किन के अंदर ही जो है वो प्रेस कर देते हो बिकॉज इट्स मॉइस्चराइजिंग और इट हैज़ अपेरेंटली इट गिव्स ऑक्सीजन टू द स्किन. सो दिस इज़ रियली गुड. अच्छा जी, ये अब मेरा मास्क ऑलमोस्ट जो है ऊपर से तो बिल्कुल ड्राई हो गया है, यहाँ से भी ड्राई हो गया. सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि जब तक मैं ये मास्क नहीं उतारती, मे बी आई कैन पुट द हेयर ऑयल इन माई हेयर. यू नो, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. ऑलरेडी इट्स 5:30, सो 6 o'clock तक वी हैव टू बी डन विद फ्रेश स्किन एंड रैपिंग अप दिस होल सिनेरियो. लेकिन अगर मेरे फेस पे ऑयल लग गया तो मसला हो जाएगा, बट कोई बात नहीं. सो दिस इज़ द really bad smelling oil that I'm going to be using. So while the mask is, ये इसकी consistency है जी. So it's pretty thick, very bad smelling. And मैं ऑयल लगाती हूँ इस तरह से करके and then just put it in my hair like this. So please review Co Natural. Madhya, I would love to review Co Natural. I have some of their products. If they have sent me products before और वो मैंने use भी किए हैं और वो बहुत अच्छे products थे. I'm gonna take some more. So if I'm looking really weird and really ugly, that's fine. But that's what happens when you're giving reviews, right? So इसको मैं I try कि मैं अपने palm of my hand से press करूँ अपनी roots के अंदर, because that is where I feel that it is needed the most. So I would love to review it if anybody is watching from Co Naturals. Actually, she's a friend of mine. I should write to her and I should tell her that people want the review of her products. तो वो मैं I will definitely review them for you. So मुझे हमेशा ये लगता था कि तेल बहुत ज़्यादा अगर बालों में लग जाता है तो फिर वो उतरता नहीं है, and which is true. So मैं हाथ में डाल के हमेशा लगाती हूँ, बट लाइक आई रिमेंबर व्हेन वी वर यंगर तो यूँ पूरी बोतलें हमारे सर पे उड़ेल दी जाती थी. सो दैट इज़ वाई मुझे तेल लगाने से ही जो है ना वो चिढ़ हो गई थी. सो आई वाज लाइक इतना ज़्यादा वो उतरता भी नहीं है, 4 दफ़ा शैम्पू करने से भी नहीं उतरता. आई एम नॉट लुकिंग अगली, इन फैक्ट शाइनिंग लाइक द सन. थैंक यू. अच्छा ये देखो है ना स्माइल, तो कैन यू गाइस सी ये जो क्रैक्स पड़ रहे हैं, सो विच मीन्स कि ये पील ऑफ करना बहुत ईजी हो जाएगा, विच इज़ द साइन ऑफ अ गुड पील ऑफ मास्क. अच्छा जी, तो ये हाँ मैं आपको बता रही थी अपनी दुख भरी स्टोरी कि माई मदर व्हेन शी यूज्ड टू पुट ऑयल इन माई हेयर, तो वो डायरेक्ट यहाँ से जाता था और वो इतना वो जो माइयाँ होती थी वो इतना ज़्यादा ऑयल लगा देती थी कि यू नो आई हैड अ रिएक्शन टू ऑयल बिकॉज वो कभी निकलता ही नहीं था मेरे बालों में से शैम्पू करने के बावजूद भी. सो आई वॉज जस्ट लाइक यू नो ऑयल equals to too much oil which never comes out of your hair. So वो I realized कि you don't have to थोपो so much oil on your hair. आपका oil जो है वो mainly
आपकी रूट्स में जाना है, ठीक है। सो अब मैंने रूट्स में लगा दिया है एंड देन यू जस्ट टेक योर फिंगर्स एंड जस्ट आपने अपनी बेसिकली सर की जो ब्लड फ्लो है उसको जाके तो जिस तरह से हम फेस पे मसाज करते हैं जस्ट टू गेट द ब्लड फ्लो गोइंग, उसी तरह से ब्लड फ्लो के लिए हम ऑयल जब लगाते हैं तो वो रूट्स पे लगाते हैं और रूट्स पे ऑयल लगा के दैट्स ऑल यू डू, दैट्स नथिंग एल्स यू डू, राइट। सो इतना तेल इज़ इनफ फॉर योर हेयर। और अगर आप ये लगा लें, सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं हर दफ़ा या हर तीसरे चौथे दिन शावर लेने से ना आधा घंटा पहले लगा लेती हूँ ऑयल एंड देन आई जस्ट वॉश इट ऑफ, बिकॉज अब मुझे ऑयल से वो एलर्जी नहीं है जो मुझे बचपन में थी कि मुझे एक मरहला लगता था टू पुट ऑयल एंड टेक इट ऑफ, राइट। सो अच्छा जी, फोन को हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। सो अभी मैंने लगा लिया एंड व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि जस्ट टेक अ लिटिल, अभी देखो मेरे रूट्स पे आई एम जस्ट गोना, और ये बाल जो हैं जब भी मैं तेल लगाती हूँ तो मेरे इतने बाल गिर रहे हैं। सो पहले मेरे ये झमघटाव बाल थे, सो अब आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल इतने से गिरे हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि आई एम गोना टेक दिस ऑयल, सो इट्स नॉट स्मेलिंग एज बैड एज इट वाज बिफोर, आई मीन इट्स स्टिल बैड, और मैं इसको लेके ना थोड़ा सा जस्ट ऑन द एजेस ऑफ माई हेयर लगा दूँगी, ठीक है, ऑन दिस साइड एंड दिस साइड। हाँ, टेल मी हाउ डू यू ट्रीट एक्ने। सो यार एक्ने ट्रीट करने के लिए देर आर मेनी वेज। वन, यू नीड टू लुक आफ्टर योर स्किन, यू नीड टू प्रॉपरली क्लीन योर स्किन, यू नीड टू यूज़ प्रोडक्ट्स विच आर मेड फॉर एक्नी। एंड अगर बहुत सिवियर एक्नी है तो सच्ची बात है कि you need to see a doctor. Just these creams and these serums and everything is not going to work. I think you will have to take proper, मैंने medication ली थी जो मेरी बहुत बुरी थी, और अब तो एस्थेटिक्स की इतनी ज़्यादा ये ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, एक्नी की ट्रीटमेंट्स हैं, PRP है, इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। सो यू शुड डेफिनेटली गेट समथिंग लाइक दैट डन। अच्छा जी, ये मैंने अपने सर पे ऑयल लगा लिया है। Please tell me how to treat acne. I did. Which oil suits you the most? Sara, honestly speaking, this oil makes my hair smell really bad. But मैंने एक तारा मीरा का ऑयल था वो भी लेके लगाया था, उससे चुभता भी था वो सर पे। बट एज आई सेड, आई थिंक अगलियर इट स्मेल और द वर्स इट स्मेल्स, और जितना चुभता है शायद उतना ज़्यादा काम कर रहा होता है, आई डोंट नो। बट मेरा फेवरेट ऑयल अगर आप मुझसे पूछो तो इज़ दिस ऑयल विच आई वॉन्ट टू स्मेल राइट नाउ, बिकॉज राइट नाउ दिस स्मेल्स रियली बैड। अच्छा जी, तो ये मैंने अपने सर पे ऑयल लगा लिया है। सो नाउ दैट आई हैव ऑयल ऑन माई हेयर, बट आप देख रहे हो कि मेरे बाल अभी भी इट्स नॉट लाइक नुचड़ोफाइंग इन ऑयल, दे आर नॉट नुचड़ोफाइंग इन तेल, दे आर ओके, कर्ल्स आर स्टिल देयर। एंड बेसिकली मैंने रूट्स पे लगाया है और सही तरह से मसाज कर लिया है, और मैंने एजेस पे एंड्स पे लगा लिया है, राइट। सो मैंने बाकी बालों को बेड़ा तरजा नहीं किया है, वो नुचड़ रहा होता है ना ऑयल, दैट इज़ वॉट जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। व्हेन एम आई कमिंग लाइव फॉर अ मेकअप ट्यूटोरियल टुमारो इज़ what day is it tomorrow? I will be coming live tomorrow. So ये अब मैं लूँगी and I am just going to put a clip in my hair ताकि ये मैं कर लूँ पीछे। So ये मैंने जी ऑयल लगा लिया है guys. I have oil in my hair. और मैं बाल जो है वो अब बांध दूँगी and I'm just going to wash my hands because obviously this ugly smelling oil is not what I want on my face. अच्छा जी, अब ये मेरा peel off mask, by the way, ऑयल लगाने से फ़ायदा ये हुआ है कि जो मेरा peel off mask है, I did have acne, yes, I did very bad acne actually, nuchidifying. I mean it's true, Anila, right? Who's had that experience of nuchidifying oil that their parents put on their head? Well, mothers mostly. So yes, definitely that nuchiding oil. अच्छा यार, ये face wash, you know, मेरी एक कंप्लेन हमेशा लोकल ब्रांड से क्या रही है, which you guys all know, is कि your products are really nice, they smell really good, they have really good ingredients, but please खुदा का वास्ता है अपनी बॉटल और अपने कंटेनर्स के ऊपर थोड़े पैसे खर्च कर लें, बिकॉज जब कंटेनर्स और बॉटल्स नहीं अच्छी होती हैं तो सारा कुछ, I mean it's the first thing that we look at, right? So anyways, अच्छा जी, ये अब हमने ऑयल लगा लिया है, ऑयल करके मैंने
नाउ ये देख रहे हो आप कि मेरा ड्राई हो गया है. इफ़ आई डू दिस तो वो थोड़ा सा स्किन से उतर भी जाएगा. सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट पीलिंग फ्रॉम हियर. सो कैन यू गाइस सी हाउ दिस इज़ पीलिंग ऑफ. अच्छा ये देखो, जहाँ जहाँ से ये नीचे है हवा नहीं लग रही थी. अच्छा, सो जो पील ऑफ मास्क होता है ना, दैट टेक्स ऑफ ऑल ऑफ योर वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स. तो as I said, it's not that easy to take it off. I'm gonna start peeling it off. ये देख रहे हैं क्या हो रहा है. The whole thing is, I'll break it. So जितने वाइट हेड्स और जितनी ऐसी चीज़ें हैं ना, देर ऑल कमिंग ऑफ विद दिस मास्क. अच्छा जी, अच्छा यहाँ से अभी इतना ड्राई नहीं हुआ. सो मैंने आपको बताया था कि बी केयरफुल विद योर हेयर, बिकॉज ये जब स्किन के साथ लगता है तो वाइट हेड्स वगैरह भी निकाल देता है. सो बी केयरफुल कि ये आपके बाल भी ना खींचें और मास्क भी उतर जाए. सो ऑब्वियसली मैंने बालों में लगा दिया थोड़ा सा, विच इज़ फाइन. इतना तो हो ही जाता है, राइट. ओके, सो इस तरफ से आप देख रहे हो कि इट हैज़न्ट ड्राइड सो मच. सो जहाँ जहाँ से इतना ड्राई नहीं हुआ, आई विल जस्ट roll it and peel it off. So what do you guys think? So I could have left it on. अगर मैं लेटी होती पंखे के नीचे तो ये सारा उतर जाता, बट क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा जो है ऑब्वियसली ड्राई नहीं हुआ था. सो दिस वाज ज्योति, दिस वाज द पील ऑफ मास्क, the golden glow peel off mask जो मैंने लगाया था. So I'm just taking it out of my. Thank you so much Tanu. So ये अब मैं साथ साथ, but it's okay क्योंकि मैंने ऑयल लगाया हुआ है. So I will be taking a shower. But मेरा एक दिन होता है when I'm not doing any makeup or anything. अच्छा, बहुत से मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हैं जिसके अंदर दे डू द आई मेकअप, और आई मेकअप करते हुए ना वो मास्क लगा लेते हैं इस तरह का, और फिर वो मास्क उतारते हैं एंड देन दे पुट द रेस्ट ऑफ द मेकअप. आई डोंट नो हाउ दे डू इट. मैं जब मास्क लगाती हूँ तो ये होता है. सो आई डोंट नो हाउ दैट हैपन्स. आई डोंट थिंक दैट हैपन्स इन रियल लाइफ कि आप आँखों पे वो लगा लें, आँखों पे मेकअप करें और फेस पे मास्क लगा लें एंड देन यू टेक द मास्क ऑफ. सो एज यू कैन सी कि मैंने काफ़ी सारा मास्क अपने बालों में डाल दिए एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू rub this mask off. I got prepped for Eid already. Well, I guess I like to spend at least one day a week pampering my skin, because अभी देख रहे हो आप ये सारा उतर जाना चाहिए था उसी तरह से, बट बिकॉज इसको इतना टाइम नहीं मिला सो ऑब्वियसली ये उस तरह से नहीं उतर रहा जिस तरह इसको उतरना चाहिए. सो ये उतार लिया. एंड ये जो मास्क हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा ये हमारा मास्क उतर गया. सिद्रा, दिस वाज द गोल्डन ग्लो मास्क. और ये जो है ये अब ऑब्वियसली मैं जब शीशे के सामने होंगी या नहा रही होंगी तो आई विल टेक दिस ऑफ. अच्छा उतर गया, सॉरी. ओके, वो क्योंकि एक्चुअली मुझे इतना नज़र भी नहीं आ रहा बिकॉज आई एम लुकिंग इन द फ़ोन एंड नॉट इन द मिरर, तो इसलिए वो मुझे पता नहीं चल रहा. सो आई विल टेक इट ऑफ लेटर, डोंट वरी. अच्छा जी, ये मेरा मास्क हो गया है. फेस फील्स नाइस एंड ठंडा
and feels quite good actually. लाइट एंड फ्रेश, सारा कुछ लग रहा है, डार्क सर्कल्स वगैरह और ये वो सब कुछ उतर गया है. ये मुझे बॉदर कर ही जा रहा है और ये करता रहेगा जब तक मैं इसको उतार नहीं लूँगी. सो बेयर विद मी, इट्स कम ऑफ. अच्छा जी, सो सॉरी फॉर दैट गाइज. ये होता है अगर मैं इसीलिए कहती हूँ कि बालों से अपना दूर रखें. ऑलराइट, सो ये मैंने उतार लिया है. सो नाउ दैट आई हैव डन दिस, व्हाट आई वांट टू डू इज़ दैट आई वांट टू use the face wash and just quickly wash my face off a little bit mask लगाने के बाद. I can also let's do that. So because I want to try the face wash, not because you need to wash your face after putting the mask on, क्योंकि मास्क से पहले हम फेस वॉश करते हैं, मास्क के बाद नहीं करते हैं. बट बिकॉज अब मैंने ये फेस वॉश ट्राई करना है तो इसलिए मैं मास्क के बाद थोड़ा सा ये फेस वॉश लगा के, सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड सी. इतना अच्छा लग रहा है. हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है एक्चुअली. स्किन इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस. माई हेयर इज़ जस्ट ऑयल लगा के ये डिज़ास्टर तो होता है. अच्छा जी, सो दिस इज़ द फेस वॉश दैट आई एम गोइंग टू यूज़ एंड आई डोंट. सो यू सी व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि ये नथिंग इज़ हैपनिंग. सो मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ अपने प्रोडक्ट्स इतने अच्छे बना लेते हैं. ओह, देयर यू गो. Okay, so it comes out and then it stops coming. I don't know, it's a really bad nozzle. So it smells of different herbs and it smells of coffee, by the way. ओके, सो अब ये निकला ही एक्चुअली इतना है. आई वुड लाइक टू टेक आउट मोर बट इट्स नॉट कमिंग आउट. मे बी आई ओपन द डैम थिंग. सी नाउ दिस इज द फाइट दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू बी हैविंग ऑनलाइन. बट मैं क्या करूँ, आई एम हैविंग टू हैव दिस फाइट. सो आई एम गोना टेक इट आउट and put some in my hand. So मैंने हाथ में लगा लिया है. Because I want to try the face wash and see. So it smells of coffee, which is very nice. बाय द वे मैंने बहुत साल पहले फेस वॉशेज़ यूज़ करना छोड़ दिए थे बिकॉज आई जस्ट फेल्ट दैट देयर वर टू मेनी केमिकल्स इन फेस वॉशेज़. सो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग देम अगेन. जब से आयशा ओ का फेस वॉश आया है, आई क्वाइट लाइक दैट. सो ये मैंने अब जो है ये लगा लिया है एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू वॉश इट ऑफ. अब थोड़ा सा ऑब्वियसली ये फेस वॉश उसमें बैठ के सिंक में आसान होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक माई फोम. and I'm going to wash it off. So this brand is called Organics Bloom. Since उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भेजी, I thought I would try all of them. और ये मैंने मास्क जो लगाया था, आप देख रहे हो उसकी भी सारी चीज़ें उतर गई हैं. मैंने तेल लगाया हुआ है सर पे, so do not expect much from my hair. And I'm not going to obviously wash the oil. ये मैंने फेस वॉश कर लिया. इट्स नाइस फेस वॉश, वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हैवी, smells great, smells doesn't smell of oh yeah, it does have coffee beans. Here you go. So I could smell coffee, orange and coffee and
barley, I don't know, लिखा नहीं हुआ. So smells of coffee, smells really really good. Tanu, I will come tomorrow around the same time. I'm usually on at 5 till 6:30. 6. अच्छा जी. So ये हमने face साफ कर लिया and then just take one of those cotton tissues and okay, what do you guys think? I think face थोड़ा सा fresh हो गया है. Definitely, I feel fresh. I feel nice and light and you know skin feels nice. So ये मैंने कर लिया है. अच्छा जी. Now what we're going to do is that we are going to, हमने ये use कर लिया, ये use कर लिया. Now I'm going to do the sunscreen. Let's do the serum first. So I'm going to now go ahead and put my serum. So not the beetroot one, I'm going to put this in the end. So I am going to now put the orange glow serum on my face and this smells great. And ये देखो orange सा इसका वो है. So very liquidy. Usually some serums are not this liquidy, right? So this is a very liquidy serum, but I'm going to rub it in. अच्छा, इसको रब करो तो it's not watery at all, it's oily actually. Some serums are very watery, but वो watery overall रहते हैं. और some serums जो है वो बहुत oily होते हैं. This is actually consistency wise very watery, but लगाने में, can you see the shine with the oil? It's actually got a really nice shine. Hey Amna, what's my corona routine? Corona routine? What's a corona routine? I try not to leave my house much. I try and do online classes, online sessions, online meetings, and that's wear a mask if I do have to go out somewhere. Like I went to get my nails done क्योंकि अब ईद की छुट्टी आ रही थी, उन्होंने गिर जाना था. So wear your mask. The whole time that I was there, I was wearing a mask. Had my sanitizers with me, and that's my corona routine, literally. अच्छा जी, ये हमने serum लगा लिया है. So I quite like the serum. I think it's quite nice, quite shiny. Oily है obviously, but that's a serum for you. But the consistency is pretty watery. It's not very thick. It can let my skin breathe. It smells really really nice. Their products, I have to say, are smelling very very nice, right? So अच्छा जी, अब हमने ये लगा लिया है. Now what I'm going to do is, since they don't have any under eye cream, so I'm going to put my Shifa का जो विटामिन A वाला वो है. So मैं थोड़ा सा 2 drops लूँगी यहाँ पे. So by the way, I have to tell you that this is a super, और जहाँ पे मुझे पिगमेंट्स है वहाँ मैं इसको लगा लूँगी. जहाँ से स्किन मेरी थोड़ी सी ड्राई है. So this smells amazing. It smells of very intense roses. विटामिन ए की भी जो स्मेल होती है. एंड इसको मैं दबाऊंगी नहीं स्किन के अंदर. आई एम गोइंग टू लेट माई स्किन एब्जॉर्ब दिस, राइट. सो ये मैंने लगा लिया है और ये बहुत ज़्यादा मेरी प्राइस्ड पोजेशन है क्योंकि ये बड़ा महंगा था और ये इतनी सी बॉटल है. बट लाइक यू ओनली नीड लिटरली 1 ड्रॉप. और ये बिल्कुल वाटरी है. एंड शिफा है SHIFFA, दैट इज़ द कंपनी. सो यू कैन गो एंड यू कैन research it and you can go and find out, but it really really does work. अच्छा जी, अब मैंने ये कर लिया है. So now what I'm going to do is that before going to the beetroot वाला thing, skin अच्छी लग रही है, fresh भी लग रही है, liking it. So now I'm going to go ahead and I am going to use this hyaluronic vitamin E booster gel. अच्छा, ये 2 चीज़ें हैं. So I'm going to try and see कि दोनों में क्या फ़र्क है. This is the Velour वालों का ही है. They have sent it to me. So this I can use yeah. So use it and then massage it into your skin. Okay. And then this is highly concentrated hyaluronic, intense moisturizes, perfectly firm. So each skin type, hyaluronic acid, green algae, vitamin E. अच्छा जी, so I don't know if these 2 things are the same, but they came connected, so they were very very connected. What should we do to the face wash before makeup?
Of course you should do your face wash when you wake up in the morning, before sleeping at night, when you're taking your makeup off, definitely. अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन दोनों का मैंने क्या करना है और उनको कैसे लगाना है. So direction for use: apply a thick layer of mask on cleansed face, leaving the area around the eyes and mouth. Leave it for 10-15 minutes. Rub the mask into the skin with a cotton swab. Apply a cream suitable for the skin type. So I am thinking maybe I will use these two things next time. एंड क्योंकि मैंने आज मास्क लगा लिया है ऑलरेडी, राइट, सो आई डोंट वांट टू पुट मास्क अपॉन मास्क, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस नेक्स्ट टाइम वोल्योर. सो अभी मैं इस दफ़ा इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई एम ऑलरेडी पुट द मास्क. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज़ आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड नाउ टेक दिस क्रीम विच इज़ द लिफ्टिंग फेस क्रीम गोट्स मिल्क प्रोटीन बाय वोलेयर. नहीं, क्रीम लगाने से पहले लेट्स पुट द सनस्क्रीन. सो आई एम गोइंग टू टेक द सनस्क्रीन. So I have to say कि इनके products are really nice and their smells are really good, but their packaging is really terrible. Okay then, so of course, और ये चिप भी हुआ हुआ है and I would really wish that it would come out. Oh, there. Okay. So this is what the, I don't know what it smells like. कैरेट सीड ऑयल है जी, इसके अंदर ग्लिसरीन है, कोकोनट ऑयल और एलोवेरा है, एंड इट्स अ नेचुरल सनस्क्रीन. सो इट लुक्स लाइक काइंड ऑफ अ पेस्ट, डजंट लुक लाइक द टिपिकल सनस्क्रीन जो बाज़ार में मिलती है. और इसको अब हम लगा लेते हैं. सो दिस इज़ अपेरेंटली सनस्क्रीन मेड आउट ऑफ फ्रेश कैरेट ऑयल, एंड आई हैव टू से दैट जितनी बुरी उसकी बॉटलिंग है या उसको निकालने का प्रोसेस जितना मुश्किल था, द सनस्क्रीन इज एक्चुअली, आई एम रियली लविंग इट. इट इज़ लाइट, इट डजंट स्मेल बैड, इट डजंट. सनस्क्रीन का मुझे हमेशा से, जिस तरह तेल जो नुचड़ वाला नहीं होता है एंड यू बिकम वेरी एंटी तेल लगाना, उसी तरह से सनस्क्रीन का भी ना वो मोटी थिक वाइट कलर की वो जो सनस्क्रीन होती थी जिसके बाद स्किन सारी ऑयली और सारा कुछ हो जाता था, तो वो मुझे उससे रिएक्शन हो गया. मैं मुझसे सनस्क्रीन लगाई नहीं जाती बिकॉज मुझे लगता है कि हमेशा सनस्क्रीन लगाओगे तो वो हो जाएगा, राइट. सो आई रियली लाइक दिस सनस्क्रीन. आई डोंट नो हाउ मच SPF दिस हैज़ बिकॉज इट्स ऑर्गेनिक, इट्स नेचुरल, बट I do not mind putting this under my moisturizer in my everyday use. The smell is कोई इतनी ख़ास स्मेल नहीं है इसकी that I say कि बहुत कोई strong smell है. The texture was very soft, बिल्कुल चिप नहीं है, कुछ भी चिप नहीं हो रहा, मेरा फेस भी चिप नहीं हो रहा. So I really like this. I'm very surprised. I'm very surprised. मुझे sunscreen नहीं अच्छी लगती, but the sunscreen has won me over. I think I'll be using this. अच्छा जी, अंडर आई के लिए वही शिफा का आई एम गोइंग टू यूज़ द आई रेमेडी. बहुत कम. अच्छा, अंडर आई में जब भी लगानी है यूज़ दिस फिंगर एंड जस्ट टेक लाइक लिटरली अ ड्रॉप एंड दोनों फिंगर्स पे लेकर ऊपर की तरफ ऑल अराउंड द आई मैंने ये लगा ली. और जैसे ही इसको लगाओ एक कूलिंग सा इफेक्ट आता है विच इज़ अ रियली नाइस इफेक्ट. सो आई एब्सोल्युटली रियली लाइक दिस क्रीम. स्मेल थोड़ी सी परफ्यूम नहीं है, सो इट्स ग्रेट. सो दिस इज़ द शिफा की two products that I've used. Really like these products, not very cheap, so देख लें if you guys want to get them. अच्छा जी, अब ये लगाने के बाद now let's come to the moisturizers. So the lifting face cream goat's milk की जो वॉलेर ने हमें भेजी है, we will put that and then we will go on to put the beetroot. And मैंने आपको बताया कि ये जो it smells of whipped cream which you want to eat, ये इसका texture है. And let's put it on. Okay, so it's looking a little bit, smells really good, looks a little bit like पॉलिशर कराते हुए जो ब्लीच नहीं होती उस तरह, बट मे बी वो गर्मी में पड़ी हुई थी शायद इसलिए इतनी वो नहीं लग रही. बट स्केयरिंग मी लिटिल बिट. मुझे ना फेस क्रीम्स हमेशा स्केयर ही करती हैं बिकॉज
very very particular about the face creams that I put on. But मैंने लगा ली है. I will come and try anything. अच्छा जी. Smells divine. I want to eat it because it smells of where have I graduated from? What were my majors? So I graduated from the fashion school, and my major was fashion design, of course. अच्छा जी. There you go. ये मैंने लगा ली क्रीम. Smells really good. वो उस वक्त आई थिंक गर्मी की वजह से गर्मी में पड़े पड़े उसको शायद ये हो गया था, but otherwise the cream is not bad. It's nice, it's light. अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, which is great. अच्छा, मैं आप लोगों को ये दिखाना भूल गई थी कि ये देखो, ये जो ऑर्गेनिक ब्लूम है ना, इन्होंने अपने सीरम और जो चीज़ें भेजी हैं ना, उनकी सारी डिटेल भी लिख के बताई हुई है कि उनके अंदर क्या क्या है और क्या क्या ये प्रॉमिस करेंगे, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और यूज़ कैसे करने हैं. सो अप्लाई अ ड्रॉप. ये लिप चीक अभी यूज़ करते हैं 30 मिनट्स के लिए. इसको आपने रखना है और रिलैक्स होना है. आई थिंक हमने 20 मिनट्स तो रख ही लिया था. और वेट योर फेस एंड हैंड, पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जेल इन अ फोमी लादर, मसाज इन सर्कुलर मोशन. ये जो फेस शाइन थी और ये जो आपका ऑरेंज ग्लो सीरम है, वॉश योर फेस 2-3 ड्रॉप्स एंड लीव इट ओवरनाइट. सो ये रात को आपको लगा के सोना चाहिए. सो उन्होंने अपनी सारी चीज़ों का आपको डिटेल भी बताई हुई है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई द इन द एंड वी आर गोइंग टू ट्राई द बीटरूट. आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बीटरूट. सो भूल जाए अगर ये तो बहुत अच्छा हो. एंड इसको कैसे लगाना है ये पढ़ भी लेते हैं. नेम प्लीज ऑफ द प्रोडक्ट. रीमा, दिस प्रोडक्ट इज़ ऑर्गेनिक ब्लूम का बीटरूट वाटरी. इट्स क्वाइट वाटरी. सो लेट्स रीड अबाउट इट एंड सी कि इसको कैसे लगाना है. ओके जी. सो आपने इसको अप्लाई अ ड्रॉप, ब्लेंड इट इन ऑन टू योर स्किन. आई मीन इतनी का साइंस है. सो व्हाट आई विल डू इज़ के क्यों बाल आ रहा है. सो आई एम गोना टेक, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. इट्स रेड. It's oh well, there you go. और मैं लगा लूँ tint, right? So I am going to now just take okay. So it's possible कि मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया है और ये देख रहे हो आप मेरा दाना निकल रहा है यहाँ पे. It's possible कि मैंने इतना ज़्यादा नहीं लगाया. So I'm going to take it with my थोड़ा सा नोज़ के ऊपर भी ले आएंगे सन किस्ट इफेक्ट देने के लिए. आई क्वाइट लाइक इट. व्हाट डू यू गाइस थिंक? और साथ में मैं अपना मार्जीज का लूँगी लिप बाम, विच इज़ माई फेवरेट. एंड अच्छा, अब ऑयल लगा हुआ है, सो देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट द ऑयल. प्लीज़ इग्नोर द ऑयल इन माई हेयर. But look at the skin. I'm loving this tint. It is so nice. What do you guys think of this tint, guys? I really really like this tint. And अगर आपने मेकअप नहीं करना और आपने कहीं नहीं जाना, I can just also take a little bit of a shine and just अगर आप देखें मेकअप नहीं कर रहे, just put a little bit of this shine. मेरे पास एक है ये इसके अंदर पड़ी हुई and you're pretty much good to go. There you go guys. This is what we did today. What do you want to see? Lip balm show करें. Margie's का lip balm है. I've talked about it a lot. You guys can go and see it in my stories as well. अच्छा जी. So ये आप देखें कि मेरे तेल लगे हुए बाल and you know now it's not smelling so bad, or maybe I've just gotten used to the smell of this ugly oil. I don't know. But मैंने अपने फेस पे आज हम लोगों ने ऑर्गेनिक ब्लूम के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और I did their peel off face mask. ये मुझे दाना निकल रहा है जिसकी वजह से ये रेड हो रहा है. बट व्हाट वुड यू यूज़ इन समर ऑन अ डेली बेसिस एक्सेप्ट फॉर मॉइस्चराइजर? इन द समर डेफिनेटली ए सनस्क्रीन. डेफिनेटली ए सनस्क्रीन. अंडर आई क्रीम ऑल्सो. तो साइमा आई वुड से वेल विद एज यू नो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस एवरी डे. आई एब्सोल्युटली रियली लव इट. और करें पिंक नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा और नेचुरल लग रहा है. सो आई एम रियली लाइकिंग इट.
सो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू मेस विद इट टू मच. आई रियली लाइक दिस सन किस्ट. अगर आप लोगों ने ब्लश और नहीं लगाना और ज़्यादा मेकअप और इस तरह की चीज़ नहीं करनी है, सो यू कैन जस्ट यूज़ दिस. अच्छा, क्योंकि मैंने ऑयल लगाया हुआ है तो मुझे अब गर्मी लग रही है. सो आई एम गोइंग टू टाई माई हेयर, बट सॉरी इफ इट लुक्स अगली देन टू बैड. कुछ नहीं हो सकता. मैंने कर्ल किए हुए थे तो वो जिस कर्ल में जहाँ पे है ना वो वैसे के वैसे ही रह गए हैं. सो एक बहुत अजीब सी चीज़ बन गई है. बट एनीवेज, सो हम लोगों ने मास्क लगाया पहले. मास्क लगा के फिर उसके बाद मैंने फेस वॉश किया. द फेस वॉश वॉज ऑल्सो वेरी नाइस. द बॉटलिंग नॉट सो मच. उसके बाद सिरम यूज़ किया. आई रियली enjoyed the serum also. And then I put oil in my hair, which I'm feeling hot because of, but doesn't matter. At least you guys can't smell it. It's really really bad, but I'm hoping it's doing really really good things to my hair. मैंने साथ में इनका सीरम यूज़ किया. द सीरम वाज आल्सो नाइस, बट एट द एंड हमने थोड़ा सा बीटरूट लिया, बीटरूट वाटरी, और हमने ये वोलेर की क्रीम लगाई विच वाज आल्सो क्वाइट नाइस एंड स्मेल्ड गुड. और एंड में ये लगाया और थोड़ा सा हमने टिंट दे दिया अपनी चीक्स को, जिसकी वजह से हमारी चीक्स जो हैं दे हैव बिकम नाइस एंड रोज़ी पिंक, विच आई एम एब्सोल्युटली लविंग बाय द वे. और अगर आपने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ एन आई लाइनर ऑन द साइड, पुट दिस एंड जस्ट पुट ऑन लिपस्टिक एंड यू आर बेसिकली गुड टू गो. सो आई थिंक natural products, organic products, local products are always the best way forward, and I always really enjoy them. I'm always very happy when I get them, whether I buy them, whether somebody sends them to me. I would love to review them. I have started putting these reviews on my YouTube channel, which is Amna Kardar Talks. I make transformation videos on my TikTok, which is Amna Kardar 5. This will be on my IGTV as well. It will be on my YouTube also. So I hope you guys enjoyed this routine today. And icon है उसको press कर दें. और कहाँ मिलेगा ये product? I'm going to link the website and you guys can go and get the products from there. And you can ask them details as well about their products. 6 बज गए हैं. टाइम फॉर मी टू हेड ऑफ. अफ्तारी का जल्दी जल्दी जाके कुछ करें. आई विल टेक अ शावर आफ्टर अफ्तारी दो. मैं आधा घंटा इसको रहने दूंगी अपने बालों में. बट आई विल बी डूइंग मोर रिव्यूज़ एंड आई विल बी गिविंग यू ऑनेस्ट ओपिनियंस एंड ऑनेस्ट रिव्यूज़. इफ़ देयर आर एनी ब्रांड्स दैट यू वांट मी टू ट्राई, लेट मी नो. इफ़ आई हैव टू बाय इट. काशीज़ मैंने आपको कहा था मुझे मिलता नहीं है. Nobody answers. But Co Natural आपने कहा है, so I'm going to reach out to Co Natural and we'll see कि हम उनमें उनके कौन से products यूज़ कर सकते हैं. Thank you for the natural light, जिसकी वजह से अभी तक मेरा ये चल रहा है, बिकॉज मैंने अपनी रिंग लाइट तोड़ दी है और अब लॉकडाउन के बाद ही कुछ भी होगा जो होना होगा. बट एनीवेज, टुमारो आई विल सी यू गाइज एट 5 o'clock फॉर माई ईद का मेकअप का ट्यूटोरियल विच इज़ गोइंग टू बी इन माई स्टूडियो. ये क्यों मेरे दाना निकल आया है? बट सो टुमारो आई विल सी यू ऑन द ट्यूटोरियल. अभी मैंने आज ही बल्कि इंस्टाग्राम पे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो लगाई है जो मैंने लास्ट ईद की लुक की थी. वो भी आप लोग जाके देखना और मुझे बताना व्हाट यू गाइज थिंक ऑफ इट. But I will see you guys next time. Look after yourself.